Good evening, children. So almost we have solved about 100 and this is the 120 MCQs, doesn't it? Today we will be completing 140 MCQs and we have solved all the question papers of all the regions of CBSE compartment examination. So that is an outstanding achievement that we have done it, and it will help you a lot. I cannot say or give any guarantee that same type of question are going to come for the examination, but what I can assure you is at least it will boost your morale. It will help you to face the MCQs with confidence. Okay, so let us now continue the series what I was teaching you. Today we have selected the question paper code that is 30/S/1 or 30/S/1, and series is there in front of you. It is of course needless to say set 1. Usually I select set 1 because I feel that minor changes are there in set 2 too, but most of the questions are same. 1 or 2 changes will be there, or the serial number of the questions may be changed, may not be in same order. Okay, fine. So now let us come with the first question that is given to us. If x is 5, if x is equal to 5 is a solution of quadratic equation 2x square plus k minus 1 into x plus 10 equal to 0, then the value of k is. Solution बोलते ही पहली बात, the first thing that should strike in your mind is if you put that value there, you must get 0, right? तो x की वैल्यू आपको कितना डालना पड़ेगा? 5. तो देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0. अब यहां पर x की वैल्यू डाल के टाइम वेस्ट मत करो. x डायरेक्टली x की वैल्यू डाला ऐसे समझ के एक्स स्क्वायर कितना होगा, x की वैल्यू डायरेक्टली डाल दीजिए आप. कितना होगा यहां पर 25 डायरेक्टली. डोंट स्टेप नहीं दिखाना हमको यहां पर. और यहां पर भी क्या होगा 5 इक्वल टू 0. अब यहां पर भी कैलकुलेशन फटाफट आप कर लो. दिस इज 50 प्लस हाउ मच 5k माइनस 5 प्लस हाउ मच 10 इक्वल टू 0, राइट. अब ये सारा कैलकुलेशन यहीं पर आप कर सकते हो. 50 प्लस 10 हाउ मच, 50 प्लस 10 हाउ मच, 60 माइनस 5 हाउ मच, प्लस 55 प्लस 55 यानी 5k इज इक्वल टू माइनस 55 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 55 हो रहा है. तो k की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? माइनस 11 होगा. तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट. यहां पर वो दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टेप पूरा अंडरस्टूड है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. दीज स्टेप्स डोंट कैरी एनी मार्क्स एट ऑल. द फाइनल थिंग दैट कैरीज द मार्क इज व्हाट. इफ यू राइट सिंपली 1b without any explanation also, you will get full marks. The examiner will put a tick mark and he will put 1 mark. And even if you write all these things also, it will not give you any mark, because you are not expected to write the solution. You are only expected to write this what is it, option. Next question है, two positive integers m and n are expressed as m is equal to p raised to 5 q raised to 2 या q square, n is equal to p cube q raised to 4, where p and q are prime numbers. Then the LCM of m and n. The LCM of what? LCM of m and n. आपको चाहिए LCM of m and n. देखिए बच्चों, यहां p raised to 5 है, p raised to 3 है. LCM भी टेक हाईएस्ट पावर लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा p raised to 5. तो आप अब सब करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको यहां आंसर मिल रहा है. p raised to 5 यहीं पर है. क्यों देखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज p raised to 5 कहां पर ऑप्शन है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बाय नो मीन्स पॉसिबल. अब वंस यू राइट हियर p raised to 5, q raised to देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया है. फिर भी चेक करना है तो मैं आपको चेक करके बता देता हूं. दिस इज q raised to 4 एंड दिस इज q raised to 2, यानी कौन सा होगा यहां पर? q raised to 4. तो यहां पर थोड़ा सा जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बचता है उसका उपयोग करके आप नेक्स्ट प्रॉब्लम कर सकते हो. तो आप यहां पर सिंपली इफ यू सी दैट p raised to 5 कहां पर है? p raised to 5 c पर है, तो गो फॉर 2c. दिस इज द ओनली वे इन विच यू कैन सेव द टाइम एज वेल एज गेट गुड मार्क्स. टाइम सेविंग टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं. यू नीड नॉट राइट एवरीथिंग इन डिटेल, नो, नॉट नेसेसरी एट ऑल.
थोड़ा सा देखो मिल रहा है, ओके फाइन, गो अहेड। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x is equal to 2a, y is equal to 3b, where ab is not equal to 0 graphically represents lines which are, आपको क्या लगता है, उन्होंने x की वैल्यू भी आपको दे दी, y की वैल्यू भी दे दी, तो ये यानी x का वैल्यू कितना आना है, 2 इंटू ए आएगा, y वैल्यू इज 3 इंटू बी। अगर x और y की वैल्यू सेपरेटली आपको दी है तो ये कौन सा ग्राफ आएगा, पैरेलल ग्राफ आएगा। अरे सोल्यूशन उन्होंने खुद दिया है आपको, अगर सोल्यूशन वो खुद दे रहे हैं तो कौन सा टाइप का ग्राफ होगा, वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट मीन्स व्हाट, द ग्राफ इज गोइंग टू इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ओके, or that point of intersection of the points are given to you, that means graph is going to get intersected there. So that means what is the correct answer, intersecting at what, हाँ, this is very important, सिर्फ पैरेलल तो हो नहीं सकता, कोइंसिडेंट भी हो नहीं सकता। ये 2a और 3b और 3b और 2b, इसमें क्या फर्क है बच्चों, x is 2a, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या लिखते हैं, x पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग एट 2a 3b। सो आंसर क्या आएगा, 3c, ओके, 3c इंटरसेक्टिंग ग्राफ, क्योंकि सॉल्यूशन खुद दिया है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, जस्ट अगर आपको ए और बी की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल भाषा में आपको बोल देता हूं कि मेरे पास एक ग्राफ है जो x इज इक्वल टू 3 पे कट हो रहा है और दूसरा है जो y इज इक्वल टू 4 पे कट हो रहा है। अगर वो कट हो रहा है बच्चों तो कौन सा ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। सिर्फ मैंने उसके आगे क्या कर दिया, थोड़ा सा मान लीजिए a जोड़ दिया और b जोड़ दिया, ओके फाइन, a जोड़ दिया और b जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ k प्लस 1, 2k माइनस 2 एंड 2k प्लस 6 आर 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is, देखिए AP के 3 consecutive terms है, AP के 3 consecutive term, AP के 3 consecutive term क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू व्हाट, A3 माइनस A2। AP हम कब कहते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो व्हाट इज द सेकंड टर्म हियर, व्हाट इज द सेकंड टर्म हियर, सेकंड टर्म क्या है यहां पर, 2k माइनस 2 है, माइनस व्हाट, k प्लस 7 है। व्हाट इज द थर्ड टर्म हियर, थर्ड टर्म क्या है बच्चों, थर्ड टर्म इज 2k प्लस 6 एंड सेकंड टर्म इज व्हाट, माइनस 2k माइनस 2k माइनस व्हाट 2। थोड़ा सा आप यहीं पर दिमाग लगाओ कि देखिए, या तो फिर चलो 2k माइनस 2 माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस k, और माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस 7, और दिस इज 2k प्लस 6, माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस, और माइनस ऑफ माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, राइट है। तो ये 2k कैंसल्स विद 2k, और दिस इज 2k माइनस 1k इज हाउ मच, 2k माइनस 1k इज हाउ मच, और माइनस 2 माइनस 7 इज हाउ मच, और हियर 6 प्लस 2 इज हाउ मच, 6 प्लस 2 इज हाउ मच, और यहां अगर मैंने इसको यहां पर ट्रांसपोज कर दिया तो k इज इक्वल टू हाउ मच। सो योर करेक्ट आंसर आपके पास आना चाहिए, ये आपके सामने है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा बच्चों 4b, 4b, राइट। अब ये सारा कैलकुलेशन अगर मैं कहूं तो मेरा तो ये कहना है कि आप इसको कैलकुलेशन मन में कर लो, 2k में से 1k चला गया कितना होगा, 2k में से 1k चला गया कितना होगा बच्चों, k होगा, और माइनस 2 और माइनस 7 कितना होता है, यहीं पर हो जाएगा। और यहां पर आप क्या कर सकते हो, 2k और ये 2k दोनों क्या होने वाला है, 2k और 2k क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर कैंसिल कर दो, और 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस कितना होता है, 8, तो ये डायरेक्टली कितना आएगा, इस स्टेप पे आप आ जाते हो। तो थोड़ा सा, हाँ, मगर शॉर्टकट का मतलब गलत करना नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मैं शॉर्टकट करके गलत कर सकता हूं तो 1-2 सेकंड ज्यादा एक्स्ट्रा लेकर एक और एक स्टेप बढ़ा दो,
मगर गलत मत करो, जल्दीबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 1 मार्क वहां पर आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने ऊपर बहुत जगह पे टाइम बचाया है, तो थोड़ा सा टाइम यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. दैट इज ऑल अबाउट टाइम सेविंग टेक्निक्स. इन द गिवन फिगर PA and PB are two tangents drawn to a circle with center O. रेडियस कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर. तो APB 60 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ PA आपको पूछा है. आपको क्या पूछा है? लेंथ ऑफ PA. आपको और क्या दिया है यहां पर? रेडियस आपको दिया है बच्चों. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये कितना होगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर है. ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है. अब इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, और मैं तो कहूंगा थोड़ा अगर मनी मन में जोड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया. और ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको एक जानकारी के लिए जस्ट पासिंग इंफॉर्मेशन है कि दिस इज इक्वल टू दिस टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कॉमन साइड इज देयर. इसीलिए ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है. पर ये पासिंग इंफॉर्मेशन है, कहीं पर भी मैं पेपर पे लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य वो है नहीं. मैं यहां पर डायरेक्टली व्हाट आई डू, आई मेक इट एज 30 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. इसकी भी जरूरत नहीं है. दिस इज राइट एंगल. परपेंडिकुलर साइड आपको पूछा है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ व्हाट? लेंथ ऑफ PA, यानी परपेंडिकुलर साइड आपको पूछा है. और आपको कौन सा साइड पता है? यहां पर कौन सा साइड पता है? एडजेसेंट साइड. आपका थीटा यहां पर है, यानी ये कौन सा साइड हो रहा है? देखो थोड़ा, थीटा के सामने वाला साइड कौन सा होता है? थीटा के सामने वाला साइड कौन सा होता है? अपोजिट. और थीटा के साथ वाला साइड कौन सा होगा? एडजेसेंट होगा. तो अपोजिट और एडजेसेंट साइड को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? tan थीटा है. तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं यहां पर? tan 30 इज इक्वल टू OA बाय AP या PA, जो भी आपको कहना है. तो tan 30 इज हाउ मच? 1/√3. OA है 5, AP आपको ढूंढना है, या PA. तो कितना होगा बच्चों आंसर? 5√3 सेंटीमीटर. देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ सर्कल्स, दैट इज ज्योमेट्री, एंड्स अप विथ ट्रिग्नोमेट्री. शुरुआत हम प्रॉपर्टी सारे सर्कल की यूज करते हैं, सोल्यूशन हम किससे करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं. और यहां 10 में से 9 बच्चे गलती कहां करते हैं मैं आपको बता दूं. वो क्या करते हैं पता है क्या? हाइपोटेनस इसको समझते हैं. हाइपोटेनस ये नहीं होगा बच्चों. राइट एंगल के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है. और राइट एंगल ये है कि मुझे कैसे पता चला? क्योंकि रेडियस जो है वो टैंजेंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमेशा क्या करता है? परपेंडिकुलर होता है. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये गलती 10 में से 9 बच्चे करेंगे गलती. और वो क्या करते हैं? साइन थीटा यूज करते हैं और आंसर 10 लिख के आ जाते हैं. आंसर 10 नहीं है, आंसर कितना है? सो द आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज व्हाट? 5B. सो वी स्टार्ट ऑफ विथ सर्कल एंड वी एंड अप विथ ट्रिग्नोमेट्री. तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं. प्रैक्टिस करो, आ जाएगा. बस एक याद रखना कि राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस है. इन द गिवन फिगर M and N are points on the side OP and OS respectively of triangle OPS such that MN is parallel to what? MN is parallel to PS. Then length of OP. OP का लेंथ कितना होगा? OP का लेंथ पूछा है. किसका लेंथ पूछा है? OP का लेंथ आपको पूछा है. देखिए कौन सा यूज करेंगे थ्योरम आप? इसको मैं कहूंगा X, इसको मैं कहूंगा X. तो बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूं कि X बाय, डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं मैं, X बाय 8.5 इज इक्वल टू व्हाट? 4.8 बाय हाउ मच? 6. इज इट राइट? X बाय 8.5 इज इक्वल टू 4.8 बाय 6. तो इसको अगर मैं यूज करूं तो दिस इज 6 1 जार 6, और ये कितना होगा? 0.8 होगा. 6 8 जार 48. और इसको अगर मैं इंटू करूं तो दिस इज X इज इक्वल टू 8.5 इंटू 0.8. तो ये होगा 8 5 जार 40, 8 5 जार 40 कैरी 4,
8 8 जार 64 प्लस 4 कितना होता है बच्चों? 68। ध्यान देना, दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो दिस इज x, x इज 6.8। मगर क्या आपको ये पूछा है? आपको ये पूछा है क्या x? आपको क्या पूछा है?